Okay, so now let's move ahead with our next part, and that's related to literacy. Now, literacy we already had done in the previous lecture that any person, यहाँ पे लिखा है 6, so you have to write a 6, but actually it's 7. So during the population counting, that is census, in the year 1991, literacy के लिए एक फिक्स क्राइटेरिया लिखा गया था, according to which any individual 6 years or above who needs to, or who at least who knows very properly to read, write, and understand at least one language, then he or she may be considered as literate. And the literacy rate in India has been increasing continuously, which is a good sign, which is a positive sign. So till here we are done. So now ahead, that from here you can come to know that in Ahmedabad, total out of say that there are 100 people staying in Ahmedabad. तो 100 में से कितने लोग लिटरेट हैं? तो yes, good number, 86.65. अब 86.65 मतलब कि 100 में अगर 87 लोग लिटरेट है, तो उन 87 या 86.65 में इसका 92.44% मेल लिटरेट है और बाकी के जो है वो 80.29 फीमेल. Now, which district has the highest literacy rate? Naturally, Ahmedabad. Which district has the lowest? You can see from here. Okay, highest. This total you can see from here. This is for female, this is male, and this is total. So, lowest is Kheda. Literacy rate of male, female in India. In India, male, female literacy rate, we'll have to, it's already given on the previous part also. And which district in Gujarat has similar literacy rate? So similar literacy rate, more also very close is Ahmedabad and Surat. And think about the possible reason for low literacy rate. There are many reasons. First of all, we can say poverty, right? And then there are many other reasons. Now, profession structure. Profession structure, that is the people who are engaged in various profession from the total population of the country can be included in the professional group. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग ऐसे अलग अलग प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं. से कि हमारे कंट्री में अगर टोटल पॉपुलेशन 100 लोगों की और अगर उसमें से 80 लोग अलग अलग प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं तो दे कैन बी इंक्लूडेड इन दैट प्रोफेशनल ग्रुप. इन इट देयर इज वर्किंग ग्रुप, नॉन वर्किंग ग्रुप. वर्किंग ग्रुप इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन द कंट्री. अब ये वर्किंग ग्रुप क्यों इंक्रीज हो रहा है हमारे कंट्री में? डे आफ्टर डे इंक्रीज होता रहता है वर्किंग ग्रुप ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द country. Now let's see qualitative and quantitative population. What do you mean by it? Change in the population. The population of a country experiences two types of changes: quantitative, qualitative. Sometimes we find variation in population count, right? In population count, cut off that getting. So sometimes we find variation in the population count. And this happens due to the rate of growth of population, migration of people. मतलब कि कई बार देखोगे तो इंडिया के विदिन भी अगर देखते हो तो एक स्टेट की पॉपुलेशन कभी ज़्यादा हो गई, कभी थोड़ी सी कम हुई. रीज़न लोग माइग्रेट हो जाते हैं दूसरे स्टेट में, परमानेंटली सेटल हो जाते हैं कहीं और दूसरे स्टेट में, और पीपल मूविंग फ्रॉम आवर कंट्री एंड सेटलिंग इन अदर कंट्री. तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कम हो जाती है, दूसरे कंट्री की बढ़ जाएगी. So this happens due to the rate of growth of population. एक तो population बढ़ती है इसलिए भी up and down, and also because of the migration of people. The quantitative change in population is seen due to condition of landless people, less land proportion, urbanization, as well as social and administrative reasons are responsible. अब ये quantitative change हम क्यों देखते हैं? एक तो लोगों की जिनके पास ज़मीन नहीं है उनकी कंडीशन जो है उसकी वजह से दे माइट बी मूविंग टू सम अदर प्लेस टू गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी. यू ऑल्सो सी सिटीज़ आर डेवलपिंग तो लोग शिफ्ट हो रहे हैं. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं, सोशल रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं. ज़मीन कम है कहीं पे, लोगों को कहीं पे काम नहीं मिल रहा,
तो क्वांटिटेटिव चेंजेस आते रहते हैं इन द पॉपुलेशन, एंड क्वालिटेटिव चेंज दैट इज लोगों के क्वालिटी में चेंज आ रहा है, मतलब कि हार्ड वर्क, intelligence, enthusiasm, bravery, the changes observed in thinking and nature, style of life, living standard of living can be determined or can be termed as qualitative change. लोगों की थॉट प्रोसीजर देख लो, उनकी सोच कैसी है, मॉडर्न या बैकवर्ड, ऑर्थोडॉक्स, रेडी टू मूव ahead in life or not ready, and ready to take risk or not ready, are they brave or not, कंट्री के प्रति उनकी फीलिंग कैसी है, नेशनलिस्टिक फीलिंग, आर दे हार्ड वर्किंग और नॉट, आर दे डेडिकेटेड और नॉट, ये सारा है थिंकिंग एंड नेचर। तो इसमें चेंजेस आते रहते हैं, फिर लाइफस्टाइल बदलती है, कई जगह पे नहीं बदलती है, हम देखते हैं। सो ऑल दिस जब बदलती है तो हम कहेंगे कि क्वालिटी में चेंज आए लाइफ की। द रीजन रिस्पॉन्सिबल, अब ये क्वालिटेटिव चेंज क्यों आता है लोगों की लाइफ में? द मेन रीजन फॉर क्वालिटेटिव चेंज इज डेडिकेशन टूवर्ड्स देयर वर्क and hard work, national feeling, enthusiasm, bravery, etc. These factors bring about thoughtful social and cultural change. फिर देखते हैं रिलीजियस ग्रुप। अब इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, राइट? बहुत सारे धर्म यहाँ पे फॉलो करने वाले लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, बट वी बिलीव इन नॉट वन सिंगल रिलीजन। हमारे यहाँ सब धर्म समभाव, right? People following different religions stay together among all. Religion, Hindus are in majority, right? मतलब कि ऐसे इंडिया की अगर बात करें तो हिंदूज मेजॉरिटी में है, लेकिन अगर तुम कोई एक पर्टिकुलर एरिया में चले जाओ तो तुम कहोगे वहां पे मुस्लिम की मेजॉरिटी है। इंडिया में ही कोई और एक जगह पे चले जाओ तो तुम कहोगे यहाँ पे क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी है, कहीं और चले जाओ तो कहोगे यहाँ पे जैन की मेजॉरिटी है। यू गो टू सम पर्टिकुलर एरिया ऑफ अहमदाबाद, यू विल से कि यहाँ पे तो जैनों की मेजॉरिटी है, कहीं और मुस्लिम्स की है अहमदाबाद में। सो बट इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट ओवरऑल, राइट? एंड डिफरेंट रिलीजन पीपल स्टे टुगेदर ओवर हियर। हाँ, हिंदू के मेजॉरिटी है। And apart from this, we also have Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, etc. लैंग्वेज तो हजारों बोली जाती है हमारी कंट्री में, बट कॉन्स्टिट्यूशनली थोड़ी बहुत मेंशन हुई है। लाइक इंडिया इज अ लार्ज कंट्री with lots of diversity as its prime feature or characteristic. Currently, there are 22 languages as mentioned in a constitution. Then comes Hindi, has been given the status of official language. हिंदी को official language का ऑनर दिया गया है, स्टेटस दिया गया है, रिस्पेक्ट दिया है। इंग्लिश ऑफ कोर्स हैज बीन कॉल्ड एज अ ग्लोबल लैंग्वेज एक्सेप्टेड वर्ल्ड ओवर। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और हमारे यहाँ के ज्यादातर स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे बने। हेल्थ ग्रुप, द हेल्थ ऑफ अ पर्सन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोस्पैरिटी अचीव्ड थ्रू ऑल द एलिमेंट्स। अब देखो, ह्यूमन बीइंग की हेल्थ, राइट, इट कैन बी डिफाइंड एज व्हाट? Prosperity achieved through all the elements like physical, mental, social, economic, spiritual. The highest level of health helps in speeding up the process of national development. अगर लोग हेल्दी होंगे मेंटली, फिजिकली, तो नेचुरली कंट्री के डेवलपमेंट में स्पीड अप आ जाएगा। अ कंट्री विल डेवलप स्पीडली। तो यहाँ पे लिखा है, व्हाई इज हेल्दी पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन? लेजी होंगे, अनहेल्दी होंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे, तो उनकी इतनी इनकम नहीं होगी, वो टैक्स भी पे नहीं कर पाएंगे। दे विल नॉट इवन सपोर्ट अ गवर्नमेंट इन डेवलपिंग द कंट्री। तो तुम या मैं, जब भी हम काम, जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स में, तो हम कहीं ना कहीं बाहर काम पे निकलते हैं, वी अर्न मनी, वी पे टैक्स, एट द सेम टाइम वी आर अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो नॉट ओनली बाय पेइंग टैक्स but also in other ways also we help the country in developing. तो हेल्दी पॉपुलेशन होगी तो वो एकदम एनर्जेटिकली काम करेगी, कंट्री को डेवलप करने में मदद करेगी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, now what is that? Very important, your 4 marker, could be asked in 3 marker also, you'll have to learn it in detail. The population of a nation is strength. हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ क्या है? पॉपुलेशन। और कौन सी पॉपुलेशन स्ट्रेंथ बन सकती है?
जो पढ़ी लिखी है, जो हेल्दी है मेंटली, फिजिकली, when human resources are educated, trained, healthy, strong, जब ये सारे लोग पढ़े लिखे होंगे, strong होंगे, healthy होंगे, skilled होंगे, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री विल बी एनहेंस, तो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट स्पीड अप हो जाएगी, मतलब एनहेंस। द यूज ऑफ ह्यूमन स्ट्रेंथ इज द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, और ह्यूमन बीइंग की स्ट्रेंथ को ही हम यूज करते हैं कंट्री को डेवलप करने, तो यही ह्यूमन बीइंग की स्ट्रेंथ क्या बनेगी, पिलर, बेस, फाउंडेशन फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। उसके बिना तो कंट्री डेवलप होगी ही नहीं। और ह्यूमन स्ट्रेंथ क्या है, तो उसकी क्वालिटी जैसा भी हमने देखा, उसके एंथुजियाज्म, ब्रेवरी, थॉट्स एंड हेल्दीनेस एंड स्ट्रेंथ, एजुकेशन एसेट्रा, बिहेवियर, मैनर्स, डिसिप्लिन एंड नेशनलिस्टिक फीलिंग टू कीप अप द स्पीड विद द डेवलप कंट्रीज। अगर हमें डेवलप कंट्री के साथ एक होके आगे बढ़ना है एंड टू कीप अ सेल्फ कॉन्स्टेंटली डायनामिक, और खुद को एकदम एनर्जेटिक रखना है कंटिन्यूसली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द ह्यूमन रिसोर्स इज अवेकन। तो हमें ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना होगा। ह्यूमन बीइंग तो बहुत सारे हैं, पॉपुलेशन बहुत काफ़ी है हमारी कंट्री में, लेकिन उसको हमें अवेकन करना है, उसको अवेयर करना है, उसको जागरूक करना है। इन द प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन, दैट इज अगर कंट्री को डेवलप करना है, द मेन रोल ऑफ ह्यूमन स्ट्रेंथ शुड नॉट बी निग्लेक्टेड। सबसे पहले हमें यूज करना है ह्यूमन बीइंग की स्ट्रेंथ को, और अगर नहीं है तो उसको लिटरेट बनाओ, या उससे लिटरेसी की एज नहीं है, अगर चलो फिर वो ना कहते हैं बड़े हो चुके हैं तो हम उसको स्किल्ड बनाएंगे। स्किल तो कोई भी टाइम पे तुम पिकअप कर सकते हो। तो द की रोल ऑफ ह्यूमन स्ट्रेंथ शुड नॉट बी निग्लेक्टेड। ह्यूमन स्ट्रेंथ को तो हमें बहुत ध्यान देना है। दे हैव टू बी गिवन utmost importance, that is prime importance. Then as a part of national population policy, तो फिर गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, राइट, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, वेरियस प्रोग्राम्स, उसमें बहुत सारे, एज अ पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी वेरियस प्रोग्राम्स लाइक न्यूट्रिशियस फूड प्रोग्राम, केयर फॉर मदर एंड चाइल्ड, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, सेफ गार्डिंग राइट्स ऑफ चिल्ड्रन हैव टू बी मेड मोर एक्टिव एंड वाइड स्प्रेड। तो ये सारे काम बच्चों की सेफ्टी के लिए, बच्चों के स्कूलिंग के लिए, उनके हेल्थ प्रोग्राम्स, उनके क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मदर एंड चाइल्ड के केयर, न्यूट्रिशियस फूड प्रोग्राम प्रोवाइड करना है बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, and mothers to be mothers, and all these program should be made more active and widespread। और इसको हो सके उतना ज़्यादा बढ़ाओ ये सारे काम को, सारे प्रोग्राम्स को, और पूरे कंट्री में मैक्सिमम फैला दो। एंड सपोर्ट द पीपल एंड मेक देम qualitative human resource, not quantitative. The factors that stops or brings problem, that is called hindering, creating problem. The reasons, that is the factors hindering the progress of the country, will have to be controlled। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को हम हम स्टॉप नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कम कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। Thus it has become important to implement the national population policy 1951। तो इसलिए जरूरी बना कि हम नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी पास करें 1951 in a very nice manner, good manner, in an effective manner, so as to control the population explosion। ताकि हम पॉपुलेशन जो बढ़ता ही रहता है उसको हम स्टॉप तो नहीं करेंगे, लेकिन कंट्रोल कर पाए। इवन द 5-year plans are made कीपिंग द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इन माइंड। और 5-year प्लान हम जब बनाती है हमारी गवर्नमेंट कि भाई नेक्स्ट 5 years में क्या डेवलपमेंट लाना है, कितने एग्रीकल्चरल ग्रोथ चाहिए, कितने स्कूल कॉलेजेस कंस्ट्रक्ट करने हैं, कितने नए रोड बनाने हैं, कहाँ पे कितनी कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज करना है, क्योंकि वो पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट होगा। तो पॉपुलेशन तो हर साल बढ़ रही है, राइट। तो 5-year प्लान उसी पे डिपेंडेंट, उसको ध्यान में रखते हुए हम 5-year प्लान बनाते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ा रहे हैं। एंड वी शुड ऑल्सो बिकम, नॉट बिकेम, इट इज बिकम, वी शुड ऑल्सो बिकम कमिटेड to render, that is provide our help, our cooperation to the government by being aware and alert. So it is said that healthy India, prosperous India, that country is prosperous whose citizens are mentally and physically prosperous। तो healthy India, rich India, developed India, prosperous India, तो वही लोग कंट्री को डेवलप करेंगे जो हेल्दी है मेंटली एंड फिजिकली। वी टू आर टू, हम दो हमारे दो, स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, राइट। सो stop over here, and after this follows the next chapter, that is the 4th chapter। So today 2 videos are sent. One is the 6th chapter,
जो अभी कंप्लीट हुआ है, एंड देन द फोर्थ चैप्टर. सो सी इट इन द फोर्थ चैप्टर फोल्डर, राइट, इन द ऐप. थैंक यू सो मच.